for coming all the way. My name is Abhina here. I'm a transgender activist. And Tweet Foundation, Transgender Welfare, Equity and Empowerment Trust. Um, uh, Tweet Foundation is basically one of the leading trans-led organization of India. And we actually provide support to the transgender people all across the life cycle. So we also provide support, for example, transgender people who are adolescents, transgender people, till the time the transgender people are old and they have a needs, and we cater those needs. Most of our work is focused around health, shelter, skilling, placement, advocacy, and building capacity. But we do create lot of employment for transgender people. Today is our 8th anniversary, and we have reached to more than almost 3,000 transgender people all across India, and provided in varied kind of services. We have 2 shelter home. One is in Delhi and one is in Mumbai. And we have the only unique shelter home for trans men, which means that people who transition from female bodies to male bodies in Delhi. Our work is specifically around making transgender people empowered, and you see, we don't want to see the next generation of transgender people begging on the signals. So most of our work, जो हमारा काम है, वो बहुत कुछ इस मुद्दे पे निर्धारित है कि आने वाला जो समाज है, next generation should be living with dignity, they should be earning, they should be financially independent, and they should be part of this entire vision of our Prime Minister Modi, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Saath. So we really want to be inclusive world in future, and we work on systematic development goals which are specifically on eliminating poverty, gender equality, education and good health. So a lot of work that we do is around trans welfare. So thank you so much for coming here and kind of being part of it. I will just request Aman to add if anything wants to add. In addition to what Abhina ma'am said, we are also very much focused around young people to build their capacity to be empowered, self-resilient, and work towards a dignified life. With this, we have been also building the capacity of young people in leading the mission, what we have brought till here, to kind of empowering trans lives in India. We have also the shelter home in Mumbai, where the people are taking the services, which includes building their capacity, vocational trainings, entrepreneurships, and also to build their own vision, what they truly believe in. And this is what Tweet is. We keep the community at the center, and according to that, we pave the path for them. And that is why, whatever work we do, it's all around communities and by the communities and for the communities. Thank you. So, जैसे हमने बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई समाज से आती है. आप देखोगे कि जब संविधान ने 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave a judgment and said that transgender people as part of the gender identity. So सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं है, it's not just male and female, but it's male, female and third gender. First time recognize किया 2014 में. 2019 में राइट ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, और आज तक 2 ट्रांसजेंडर महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है. पिछले 2 साल से लगातार ट्रांसजेंडर विमेन जो है वो पद्मश्री अवार्ड जीत रही है. ट्वीट फाउंडेशन में हमारा काम रहता है, वी ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग लैंडमार्क इवेंट्स दैट रियली क्रिएट्स एंड एम्फेसाइज ऑन पॉलिसी चेंज. So what we try to do is that how does the policy can really get influenced because of that. So like for example, when there was no employment, जब transgender के employment के बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे, तो we started something called as a transgender employment मेला. So on 18th of June, please stay tuned, 18 जून 2019 को प्राइड मंथ में दिल्ली में ललित होटल में हमारा ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला होने जा रहा है. This Mela is going to bring 300 transgender people who are going to seek job all across India. More than 35 companies are going to be participating into that. और ये तीसरा एपिसोड है हमारा, ये तीसरा चरण है, और ये हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर के साथ मिलके करते हैं, मतलब गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलके करते हैं. जब भी गवर्नमेंट इंडिया ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में आंकड़ों की बात करता है, तो वो ट्वीट फाउंडेशन की तरफ देखता है, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने कितने ट्रांसजेंडर को ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दिया, बट हमने इंटर्नशिप का भागीदारिता दिखाई, और इंटर्नशिप मतलब ऑन जॉब इंटर्नशिप ऑल्सो.
सो ललित होटल के साथ मिलके 6 महीने का हमारा कोर्स चलता है, जिसमें ट्रांसजेंडर मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और 6 महीने के बाद आज आप देखोगे कि 4 ऐसे ट्रांसजेंडर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिन्होंने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया, और उनके ऑफर लेटर हाथ में रखे जाएंगे। आज जो इंसान रास्ते पे भीख मांग रहा है उसे 22 से 24 हज़ार की जॉब मिल रही है ये 6-8 महीने का कोर्स करके। से अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट काबिलियत है। हमने देखा है कि जब भी ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट को हम काम करते हैं, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं ट्रांसजेंडर्स को, तो उनकी फैमिली जो पहले एक्सेप्टेंस नहीं रखती वो आगे आगे उनके एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो समझती है कि वो भी समाज का एक इज्जतदार हिस्सा है। और यही बदलाव की कोशिश हम कर रहे हैं, बिकॉज मोर एंड मोर ट्रांसजेंडर फैमिलीज आर रिजेक्टिंग देम, दे विल गो टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब एक ट्रांसजेंडर की फैमिली 14 साल में, 15 साल में, 19 साल में, 20 साल में उन्हें रिफ्यूज़ कर देती है, रिजेक्ट करती है, ये सोच के कि हमारे नाम पे ये कलंक है, तब वो इंसान आपको सिग्नल पे भीख मांगते हुए दिखाई देता है। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में 37% एजुकेटेड लोग हैं, परंतु सिर्फ 6% ट्रांसजेंडर्स है जिनको फॉर्मल जॉब्स है। देयर आर ओनली 6% ट्रांसजेंडर्स हु हैव अ फॉर्मल जॉब NHRC के डेटा के मुताबिक। तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट तो ये एजुकेशन तो है ट्रांसजेंडर में, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कई बार आप जिसको भीख दे रहे हो 1 रुपए की, 10 रुपए की, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हो सकता है कि वो ग्रेजुएट इंसान है जो आपके सामने भीख मांग रहा है, बट आज क्योंकि उसको जॉब नहीं है उसे ये दिक्कत का सामना झेलना पड़ रहा है। सो वी डू लॉट ऑफ वर्क अराउंड दैट। हम लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं उस विषय में कि ये एम्प्लॉयमेंट मेला के माध्यम से हम मेन स्ट्रीम में उनको हिस्सा बनाते हैं। फिर जैसे कंपनीज में देयर आर सो मेनी कंपनीज हु डोंट हैव अ पॉलिसी, जैसे आपके पास मेल और फीमेल वॉशरूम्स है, बट ट्रांसजेंडर के लिए कोई वॉशरूम्स नहीं है, तो हम जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स को लेकर सपोर्ट करते हैं। उनके वर्क प्लेस पॉलिसीज में हम सुधार लाने का कोशिश करते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाता है, तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, वैसे इनको सर्जरी लीव भी मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान, क्योंकि आज की तारीख में ट्रांसजेंडर को किसी भी तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, तो 2 लाख से 5 लाख का सर्जरी ट्रांसजेंडर पर्सन कहाँ जाके कराएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट वो एक साइक्लिकल डेप्थ में फंस जाते हैं। वो हेवी इंस्टॉलमेंट पे पैसा उठाते हैं सर्जरी के लिए, और वो चुकाते चुकाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आज भी बहुत सारे कम एम्स में ट्रांसजेंडर को सर्जरी को लेकर सपोर्ट है, बट बाकी कहीं पे भी ट्रांसजेंडर को सर्जरी को लेकर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो ट्रांसजेंडर की जो एम्पावरमेंट है, हमने देखा है कि शिक्षा, जैसे माया ने आपको बताया कि हम जो बच्चे 10वीं पास करना चाहते, 12वीं पास करना चाहते, ग्रेजुएशन पास करना चाहते, उनको हम एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उन्हें हम जॉब के साथ शामिल करते हैं। जो बच्चे ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे ललित होटल है, लेमन ट्री होटल है, या अभी हमने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है मजीदिया हॉस्पिटल के साथ, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स करके ट्रेनिंग देंगे। वो फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बन सकते हैं उस चीज़ को। बीपी चेक करना, वज़न चेक करना, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, ये सब बेसिक चीज़ें करके आगे चल के हो सकता है कि वो ओल्ड एज केयर के लोगों को, पेशेंट को सपोर्ट कर सके। तो ये एक इनोवेटिव मेथड हम करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा सोच जो है वो आज से 5 साल आगे का है। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम काम करते हैं, वो है ट्रांस मेन का लीडरशिप। यानी आपको जो आप देखते हो ज़्यादा करके ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, या हिजड़ा है, जोगपा है, मंगलमुखी है, बट ट्रांसजेंडर मेन भी होते हैं जो बचपन में एक फीमेल करके पैदा हुए और अपने आप को अभी मैन करके आइडेंटिफाई करते, मैन करके अपने बॉडी को ट्रांजिशन करते। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है समाज में, और ये लोगों को बहुत बार जो है अपने फैमिली में ही उनके साथ रेप होता है, उनके साथ हरेसमेंट होती है, उनकी ज़बरदस्तियाँ शादी करवाई जाती है। तो इस जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ भी हम काम करते हैं। इसको लेकर भी हम इवेंट्स करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो आप ज़रूर हमारे इवेंट का हिस्सा बने जो 18 जून को है। जर्नी रही है, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट when you talk about CSR funding or even the donations that you talk about, many times जो बच्चों के लिए और women के लिए डोनेशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक ऐसा भाग है जिसको समाज में दुर्लक्षित किया गया है, उसको एक धब्बा, भेदभाव की नज़र से देखा जाता है। ऐसे काम के लिए लोग कम्युनिटी के लिए पैसा देना
नहीं वाजिब समझते, बोलते कि हमारा पैसा हार्ड अर्न पैसा है, ऐसे कम्युनिटी को क्यों दे। कई सारे लोग जो है वो बहुत ऐसा महसूस करते कि अरे अरे ये लोग ऐसे हैं, बट खुद अपने घर पे नहीं बुलाते, ना कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं वर्क के लिए। तो सबसे मेन जो हमारा इशू आया था वो था फंड रेजिंग के लिए। और कई बार पहले 3 साल जब संस्था शुरू की तब हमने अपने जेब से पैसे डाल के संस्था चलाई, ये बताने के लिए कि ये कम्युनिटी अगर सपोर्ट किया जाए तो कितने अलग लेवल पे पहुंच सकती है। आज हमारे से जो जुड़े हुए ट्रांसजेंडर्स है वो अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे जगह पे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और अच्छा लगता है। जो बच्चे रास्ते पे भीख मांग रहे थे, हमारे पास एक केस है जहाँ पे कोई पर्सन जो हिजरा कॉन्स्ट्रक्ट का हिस्सा बन गया था, मंगती के लिए बधाई के लिए जा रहा था, बट वो इस तरीके से ट्रैप हो गया था कि वो अपने जीवन को ख़त्म महसूस कर रहा था। बट जब ट्वीट ने उसका हाथ बढ़ाया और उसको एजुकेशन दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, 12वीं पास हुआ और उसको एक रिस्पेक्टेड कंपनी के साथ जॉब मिला, तब वही कंपनी जो कंपनी उसको गेट में अंदर नहीं आने देती थी, आज उसी कंपनी का जो दारबान था वो उसको सलाम ठोक रहा था कि सलाम मैडम प्लीज़ आइए, आपका जॉब के आप जॉब कीजिए। ये फरकाव का बदल है, इंसान की जो दृष्टि है वो चेंज हो जाती है। Now also a lot of people when they speaking in English fluently, they always get mesmerized. They think that oh my God, transgender people can really be speaking like that because they don't know that transgender people are educated. So उसी के साथ इन हारमोनी हमारे साथ जुड़े अभी अनुपमा जी भी यहाँ पे है, वो बात करेंगे। अनुपमा जी भी हमारे साथ करीब 5 साल से जुड़ी हुई है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इन हारमोनी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी के ऊपर काम करते CSR सेक्टर में, इन्होंने हमारा हाथ थामा, इन्होंने हमारे कई सारे CSRs को हमसे मिलवाया, उनको कन्विंस किया कि ऐसे काम के लिए सपोर्ट करना चाहिए जिसके वजह से ये काम हासिल कर पाए। So we were discussing about how this 8-long journey has been. So maybe you can just talk about employment mela and other things that we are talking. I've given brief about it. Yeah. इन हार्मनी एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन कंसल्टेंसी की फाउंडर हूँ। 2014 से हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के विषय पे काम कर रहे हैं। 2016 से हम ट्रांसजेंडर लोगों को कॉर्पोरेट स्पेस में लाने की पूरी एफर्ट कर रहे हैं। ट्वीट फाउंडेशन के साथ लास्ट कई साल आई थिंक 2016 से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं एंड लास्ट 3 इयर्स में हम लोग ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला एवरी ईयर करते हैं। सो इसके पहले लाइक स्पोरेडिक बेसिस पे वी यूज्ड टू कनेक्ट विद कंपनीज एंड से हायर ट्रांसजेंडर पीपल, बट 3 years बैक हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्वीट फाउंडेशन के साथ वी गॉट इनटू दिस प्रोग्राम ऑफ ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला जो नेशनल लेवल पे होता है। एंड इन द लास्ट 2 years around 200 odd people we have placed in different companies. Every year ये employment मेला में in one place 200 plus transgender लोग आते हैं employment seeking के लिए। 20 to 30 companies participate करते हैं, either online या physical space में दिल्ली में participate करते हैं, and either they give jobs or at least sensitization programs करें अपने companies में so that in future there are more opportunities. कई कंपनीज इंटर्नशिप प्रोग्राम्स शुरू किया है, CSR इनिशिएटिव से भी देख रहे हैं कि कैसे ट्रांस लोगों के जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस करके दे कैन गिव मोर एम्पावरमेंट. सो दैट्स ब्रॉडली व्हाट एनी अदर क्वेश्चंस आर देयर. Yeah, firstly, great work that you are doing to empower transgenders. This is something which was very much required, and thank you for enlightening us about this. And we have understood, and we are sending a message out to all the people, all our readers. So, what are the challenges that you face that the society, the companies, and do you have any kind of a portal where they can put their resumes and the world can see that these are the job options available? And before they do a joining, do you also sensitize the company employees so that? And what are the other challenges that you face? Thank you. Thanks for that question, and thank you all for being here as well. So challenges are many. Just like how in society we still are, a lot of people will not create enough opportunity. The same struggle we have. Many companies say हम लोग तैयार नहीं हैं. ओके एंड अभी हम जेंडर पे काम कर रहे हैं ना. जेंडर में व्हाट दे मीन जेंडर इज विमेन, बट जेंडर ऑल्सो इज ट्रांसजेंडर. इट इज़ लीगली रिकग्नाइज जेंडर एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट. सो दिल से हम जेंडर पे काम कर रहे हैं, फिर हम PWD पे काम कर रहे हैं. सो
in the selection or priority, transgender people is coming almost in the end, or LGBTQ community itself. तो इस ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है. दूसरा लाइक एंड लॉट ऑफ सच रीजंस कम. फिर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जेंडर ऑल जेंडर वॉशरूम्स नहीं है, वो भी हम बना नहीं सकते हैं, हमारी लीडरशिप तैयार नहीं. सो दीज आर सम बिग स्ट्रगल्स दैट वी हैव. सेकेंड थिंग इज़ दैट कई सारे स्पेसिफिक टैलेंट्स अगर वो ढूंढ रहे हैं ट्रांस कम्युनिटी से, वो मिलना मुश्किल है. आई थिंक अविनाश शायद ऑलरेडी शेयर किया होगा आपके साथ कि कितने सारे ट्रांस लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या जस्ट अबाउट ग्रेजुएशन किया है वो भी ओपन स्कूल से. सो they won't have very specialized IT skills या very specialized kind of any field. So we are not able to give the kind of talent which a company wants, which is why ये internship programs work. Now you're coming to the point कि how do we prepare companies? Yes, we insist कि जो भी company hire कर रहा है sensitization ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे. Not just HR, senior leadership से लेके राइट डाउन टू द सिक्योरिटी सपोर्ट स्टाफ. क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी मूविंग अराउंड एवरी पार्ट, एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ इंक्लूजन स्टार्ट्स एट द गेट or when they entering the lobby. How does a security person address them? You know, are they looking at them with a view that who's this odd person, or are they saying that welcome and they are addressing them in the right way? So our sensitization starts from there right till the senior most level, and that's something we really insist. Is there any job portal that you have created? So we don't have a job portal as yet, and that's something which we are contemplating to create. Unfortunately, also I must say that this year we are also seeing a slowdown thanks to some of the global things that are happening, and there is a pullback. So we are all, while that's definitely impacting, but we don't stop. We have to continue doing our work, and we will continue doing it. Thank you. Okay, so there are multiple ways. One is that our social media is very, very strong. Our social media, if you follow us on Tweet Foundation, Instagram, Facebook, LinkedIn, we are very strong, and we responded very quickly. Second is that we have a helpline numbers. We have helpline number in Delhi and we have helpline number in Mumbai. Those helpline numbers are active 24 hours. So, sorry? Oh, the number, okay, I have to find it. So these helpline numbers are very helpful for transgender people to connect. So since I am in Mumbai, I am just going to talk about helpline of helpline number is 6294115122. Yeah. Besides that, if anybody wants a placement, we have an email address called placementtweet@gmail.com. So इस पे आप email कर सकते हो अपना CV, हम आपको contact करेंगे, हम आपका CV refresh करेंगे, आपके साथ एक डमी इंटरव्यू करेंगे बताने के लिए किस तरह का इंटरव्यू होता है, कॉर्पोरेट से लिंकेजेस करेंगे, आपके सेशंस करेंगे ताकि आप इंटरव्यू को अच्छी तरीके से फेस कर पाओ. हमारे वेबिनार्स भी होने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में, और अनुपमा जी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनर्स है उसमें, तो वो बताने भी वाली है करके कि किस तरीके से कंपनीज के साथ आप अप्रोच कर सकते हो. टॉक अबाउट इट. सो जैसे आप बोल रहे हो ना, कैंडिडेट्स जो भी हैं, जैसे इवन जो अभी ना बात कर रही थी कि स्ट्रीट्स में बेगिंग करते हुए दिखते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट ये जो हेल्पलाइन नंबर है, या मेनी पीपल नो कि गरिमा एटलीस्ट बॉम्बे में उनको पता है कि ऐसे ट्वीट फाउंडेशन चलाती है. अब उनमें से कोई जॉब सीकिंग करते हैं तो फर्स्टली इन ट्वीट इटसेल्फ ए करियर रेडी प्रोग्राम है, सो दे कैन गो थ्रू दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. या देयर आर स्किलिंग वोकेशनल प्रोग्राम्स विच आर देयर. कई सारे कंपनीज के CSR ने भी इन्वेस्ट किया है कि ऐसे स्किलिंग प्रोग्राम्स करें ताकि लोग जो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बिकॉज कंपनीज ऑल्सो वांट मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो इफ दे डोंट हैव एटलीस्ट कि उनके पैर पर खड़े हो सकते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कोई ऐसे वेंचर भी शुरू कर सकते हैं. सो डिफरेंट वेज दे आर हेल्प. नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट, वन हम लोग यू वुड हैव हर्ड दैट हम लोग सेंसिटाइज करते हैं कंपनीज को. एक्टिवली वी आर ट्राइंग टू गेट कंपनीज टू लुक एट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़. So ready opportunities नहीं है तो at least train them, do 6 months, 1 year internship programs, and then they are ready, not in your company, maybe somewhere else. क्योंकि that there is a gap and that gap needs to be filled. For the candidates also alongside हम लोग candidates को भी like typically जैसे campus to corporate जैसे training होता है, हम candidates को भी उस तरह की training देते हैं कि आप corporate में जाओगे तो किस तरह का माहौल होगा, how do you
bring in that ethics, the professionalism, etc. in the company when you go to work. So it's not like one side is there. There are many cogs to make this wheel really move, and we work on all aspects of it. We together work a lot, but we also bring in jo bhi milta hai, who can contribute to it. We really tap into those resources, and fortunate that we keep finding people and organizations who want to support the cause. Though I must say it's just a tiny drop in the ocean. I think there's a lot that needs to be done. Yeah, and if you just type it Tweet Foundation on the Google map, it will reach to our office. It's very easy to find. So जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे सर्विसेज लेना चाहते हैं, सिर्फ गूगल मैप पे ट्वीट फाउंडेशन टाइप कीजिए. दिल्ली में हो तो दिल्ली में पहुंच जाओगे, मुंबई में हो तो मुंबई में पहुंच जाओगे.